وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا وقال تعالى في مقام آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت محبت کی انتہا کا نام ہے۔ جب کسی بندے کے دل میں دوسرے بندے کی طرف یا کسی دوسری چیز کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے تو اس کو رغبت کہتے ہیں، اور جب یہ رغبت شدید ہو جاتی ہے اور بندہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو طلب کہتے ہیں، اور طلب اتنی شدید ہو جائے کہ اس کو حاصل کیے بغیر بندے کو چین نہ آئے تو اس کو محبت کہتے ہیں، اور جب محبت بہت بڑھ جائے اور بندہ بے اختیار اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دے تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو میلان کا پہلا درجہ رغبت کہلایا جاتا ہے، دوسرا درجہ طلب کہلایا جاتا ہے، اس سے اوپر کا درجہ محبت کہلایا جاتا ہے، اور اس سے اوپر کا درجہ پھر عبادت کہلایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے دل میں غیر اللہ کی محبت ہو اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس ناپاک محبت سے چھٹکارا مل جائے، جان نہیں چھوڑتی، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ورد ہے جو روزانہ 100 مرتبہ کیا کرے، غیر اللہ کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ ورد یہ ہے لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس ورد میں بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی مرغوب نہیں، اللہ کے سوا میرا کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے سوا میرا کوئی محبوب نہیں، اور اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں۔ اور ہمیں شریعت مطہرہ نے جن بنیادی اور اساسی ارکان کا پابند بنایا ہے، ان ارکان میں بھی محبت کے مختلف مدارج ہمیں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی بندے کو دوسرے بندے کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو محبت کی ابتدا میں بندے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا رہوں، بہانے بہانے اس کے ساتھ لمبی باتیں چھیڑتا ہے، رات کے وقت فون میں لاتا ہے اور کئی گھنٹے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی ہمیشہ کے لیے یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا گوشہ تنہائی مل جائے جس میں میں اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھ کے محو گفتگو ہو جاؤں۔ یہ محبت کا ابتدائی درجہ ہوتا ہے، اور نماز کی صورت میں محبت کا یہ درجہ ظہور پاتا ہے کہ جب کسی بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ نماز کے ذریعے سے مناجات اور سرگوشی کرتا ہے۔ کبھی وہ فجر کا بہانہ بنا کے اپنے رب کے ساتھ محو گفتگو ہوتا ہے، کبھی اشراق کا بہانہ بنایا تو اپنے رب کے ساتھ تو تار جوڑ کے باتیں کرنے شروع کر دی،
कभी चाश्त का बहाना बना के अपने रब के साथ मुनाजात में मुस्तगरक हो गया, कभी अव्वाबीन के ज़रिए से अपने महबूब से गुफ्तगू की कोशिश कर ली, और कभी तहज्जुद का बहाना बना के अपने महबूब परवरदिगार के साथ राज़ो नियाज करने की कोशिश करते हैं। नमाज के ज़रिए मोहब्बत का ये इब्तिदाई दर्जा ज़ुहूर पाता है। जब ये मोहब्बत बढ़ जाती है तो मुहिब्बीन की हालत ये होती है कि वो खाने पीने से मुस्तगनी हो जाते हैं। अपने महबूब की मोहब्बत दिलो दिमाग पे ऐसी छा जाती है कि शदीद भूख की कैफियत में भी खाना खाने को दिल नहीं करता। प्यास लगी होती है, बंदा पानी से बेपरवाह हो जाता है। वालदा कहती है, बेटा आपने दोपहर को भी खाना नहीं खाया था, अभी तो खाना खा लो। कहते अम्मी खाना खाने को दिल नहीं करता। माँ हैरान होती है कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, दोपहर का खाना भी नहीं खाया, अब भी कहता है कि मेरा खाना खाने को दिल नहीं करता। लगता यह है कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, शायद मैदा मुतासिर हो चुका है। माँ बेचारी को नहीं पता होता कि मेरे बेटे को क्या रोग लग चुका है। महबूब की मोहब्बत में बंदा खाने पीने से मुस्तगनी और बेनियाज हो जाता है, और रोज़े की सूरत में मोहब्बत का ये दर्जा तकमील तक पहुँचता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करने वाले सख्त गर्मी के मौसम में शिद्दत की प्यास बर्दाश्त करते हैं। ठंडा पानी मौजूद होता है लेकिन ठंडे पानी की तरफ हाथ नहीं बढ़ता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत इतनी गालिब आ चुकी होती है कि खाने पीने से बंदा मुस्तगनी और बेपरवाह हो जाता है। इससे मोहब्बत का अगला दर्जा कि महबूब के इशारों पे बंदा अपना माल लुटाना शुरू कर देता है। जैसे वो चाहता है वैसे बंदा अपना माल उसके कदमों में ढेर कर देता है। ज़कात की सूरत में हमें मोहब्बत का ये दर्जा ज़ुहूर पजीर नजर आता है। चुनांचे हम देखते हैं एक बंदा पूरा साल पसीना बहा बहा के कमाता है, बचत कर करके इकट्ठा करता है। प्रोग्राम ये होता है कि साल के इख्तिताम पे अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा, अपना ज़ाती मकान बनाऊंगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म मुतवज्जे हो जाता है तो ये बंदा अपनी तमाम तर ज़रूरियात, तमाम तर हाजात को बलाए ताक रखते हुए अपने महबूब परवरदिगार के नाम पे अपने खून पसीने की कमाई लुटाना शुरू कर देता है। नजर आता है कि मेरी अपनी जरूरत है, मैंने अपना मकान बनवाना है, बेटी की शादी करवानी है, लेकिन महबूब का मुतालबा है, लिहाजा महबूब के मुतालबे के सामने तमाम तर हाजात को बंदा पसिपुश डाल लेता है। ज़कात की सूरत में मोहब्बत का ये दर्जा ज़ुहूर पाता है। और मोहब्बत का एक और दर्जा होता है कि जब किसी बंदे के दिल दिमाग पर अपने महबूब की याद इतनी छा जाती है कि बंदे को अपने महबूब के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। बेताब और बेकरार होके अपने घर से निकल पड़ता है, अपने अहल अयाल और अपने काम कारोबार को छोड़ देता है, ज़ैब ज़ीनत से बिल्कुल मुस्तगनी हो जाता है। न उसको इस बात की फिक्र होती है कि मेरे कपड़े मैले हैं, मेरे जिस्म से बदबू आ रही है, मेरे नाखून मेरे बाल बढ़ चुके हैं। नहीं, सब कुछ से बंदा बेनियाज और अजनबी बन के वो घर से निकलता है, पागलों की तरह चीखता चिल्लाता हुआ अपने महबूब के कूचे की तरफ भागना शुरू कर देता है। और जो ही अपने महबूब के घर के करीब पहुंचता है तो कभी एक दीवार को बोसा देता है, कभी अगले दीवार को बोसा देता है, कभी पत्थरों को चूमता है। बिल्कुल पागलों वाली सूरत होती है। हज की सूरत में हमें मोहब्बत का वो इंतहाई दर्जा नजर आता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुहिब्बीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में जब बिल्कुल बेताब और बेकरार हो जाते हैं तो अपने घरों से निकल पड़ते हैं, अपने घर की सहूलियात को छोड़ देते हैं, अपने काम काज से बिल्कुल अजनबी बन जाते हैं, अहलो अयाल से भी पराए बन जाते हैं। ज़ैब ज़ीनत का लिबास पर करके सिर्फ 2 चादरों में मलबूस होके पागलों की तरह अपने घर से निकलते हैं। सहराओं में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हुए पागलों की तरह अपने महबूब के घर की तरफ दौड़ रहे होते हैं। और जो ही अपने महबूब का घर नजर आता है बेताब और बेकरार हो जाते हैं। पागलों की तरह, परवानों की तरह
अपने महबूब के घर के इर्द गिर्द भागना शुरू कर देते हैं। कभी पत्थरों को चूम रहे होते हैं, कभी सतूनों को बोसे दे रहे होते हैं, कभी चौखट को चूमने की कोशिश करते हैं, कभी एक पहाड़ पे चढ़ते हैं, उससे भाग के अगली पहाड़ पे चढ़ते हैं, कभी मीना की वादियों में, कभी अराफात के मैदानों में, कभी मुजदलफा के मैदानों में चीखती चिल्लाते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हुए अपने महबूब के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। हज की सूरत में मोहब्बत का ये मेअराजी दर्जा हमें ज़ुहूर पजीर नजर आता है। मौजूद सामीन, दुनिया में हम देखते हैं कि जब किसी को अपने महबूब के साथ मोहब्बत होती है तो वो चाहता है कि मैं अपने महबूब का दीदार कर लूं, और दीदार किए बगैर चैन नहीं आता। और अगर ऐसी कैफियत बन जाए कि महबूब का दीदार मुमकिन न हो तो अपने महबूब की निशानियों को देखकर अपनी मोहब्बत की आग को ठंडा करने की कोशिश की जाती है। खुदा ना खास्ता माँ का नौजवान बेटा फौत होता है तो माँ बेचारी बेटे का दीदार तो नहीं कर सकती, लेकिन बेटे की निशानियों को देख के अपने आप को तस्कीन पहुंचाने की कोशिश करती है। कभी बेटे के कपड़ों को देखती है तो आंसू बहा रही होती है, कभी बेटे के जूतों को देखती है तो अपने बेटे की याद ताज़ा कर रही होती है, कभी बेटे की बिस्तर को देख रही होती है तो अपनी मोहब्बत को तस्कीन पहुंचा रही होती है। अपने महबूब की निशानियों के जरिए से अपनी मोहब्बत की आग को ठंडा करने की कोशिश करना दुनिया में हमें नजर आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुहिब्बीन पर एहसान फरमाया। अल्लाह के मुहिब्बीन भी तो यही चाहत रखते हैं, ये तड़प रखते हैं कि काश कि हम भी कभी अपने महबूब परवरदिगार का दीदार कर लें। वो परवरदिगार जिसको देखे बगैर हम सख्त सर्दी के मौसम में नरम गरम बिस्तर को छोड़ के उसके सामने सर बसजूद होते हैं, कभी रुकू करते हैं, कभी क़ियाम में होते हैं, कभी सजदे व क़ाद में होते हैं। कभी उस परवरदिगार का दीदार हमें नसीब हो जाए, फिर दुनिया वालों को पता चल जाएगा कि हम किस तरह इबादत करते हैं। कभी ए हकीकत मुंतज़र नजर आ लिबास मजाज में, कभी ए हकीकत मुंतज़र नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। ऐ अल्लाह, कभी तू लिबास मजाज में सामने आ तो जा, फिर देख लेंगे आपको कि मैं किस तरह सजदे करता हूं। मेरी पेशानी में हजारों सजदे तड़प रहे हैं बेकरार और बेताब। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, बंदे की ये चाहत होती है कि मैं अपने महबूब का दीदार कर लूं, और अगर महबूब का दीदार न हो सके तो महबूब की निशानियों का दीदार कर लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुहिब्बीन पर ये एहसान फरमाया कि रूए ज़मीन पर अपनी कुछ निशानियाँ मुतय्यन फरमाई हैं, और अल्लाह के मुहिब्बीन उन निशानियों को देख देख कर अपने इश्क को तस्कीन पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बैतुल्लाह है, सफ़ा मरवा है, अरफात मिना मुज़दलिफ़ा हैं, ये सारे के सारे शाइरुल्लाह में से हैं। इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा मरवा ये शाइरुल्लाह में से हैं। लोग लाखों रुपया खर्च करके सफ़र की मुशक्क़तें सऊबतें बर्दाश्त करके वहाँ पे जाते हैं और अपने महबूब परवरदिगार की निशानियों को देखते हैं और अपनी मोहब्बत को सुकून पहुँचाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बैतुल्लाह शरीफ रूए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है। अगर हम ज़ाहिर में देखें तो ये आम कमरों की तरह एक कमरा है जो कदरे बुलंद है और सादा पत्थरों का बना हुआ है। मादी एतबार से दो तीन इम्तियाजी खसूसियात हैं। एक तो ये कि उसको गिलाफ पहनाया जाता है, दूसरा ये कि उसके दरवाजे पे सोने का पानी चढ़ाया गया है, और तीसरा ये कि उसका ताला और उसका परनाला ये सोने के बने हुए हैं। मादी तौर पे बस यही दो तीन इम्तियाजी खसूसियात हैं, लेकिन रूहानी तौर पे बैतुल्लाह की कुछ ऐसी खसूसियात हैं जिनकी बदौलत ये बैतुल्लाह दुनिया के तमाम तर मकामात, तमाम तर मकानात
और तमाम तर महल्लात से मुनफरिद और मुमताज़ बन जाता है। बैतुल्लाह की सबसे पहली खसूसियत ये है कि ये अव्वल आलम है। अव्वल आलम का माना ये है कि कायनात का नुक्ता आगाज बैतुल्लाह है। बैतुल्लाह से ही इस कायनात को फैलाया गया है, इसको बनाया गया है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन की तख्लीक से 2000 साल पहले बैतुल्लाह की इस मकाम को पैदा फरमाया, फिर उस मकाम से ज़मीन को फैलाया, ज़मीन को वुसअत दे दी। गोया कि ज़मीन का नुक्ता आगाज़ बैतुल्लाह का मकाम है। और इसकी फिर तफसील दूसरी रिवायात में मौजूद है कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक से कबल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हीरा पैदा फरमाया। उस हीरे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी जलाल की तजल्ली डाली, जिसकी वजह से वो हीरा टूट गया, वो फट गया। उससे थोड़ा सा पानी निकला और थोड़ा सा धुआं निकला। धुआं ऊपर को उठ गया, उससे आसमान बन गए। पानी जो वहाँ मौजूद था उसको अल्लाह ताला ने बढ़ोतरी दी, वो बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गया, हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पानी को हरकत दे दी। पानी की सतह पे झाग नमूदार हुई। वो झाग एक जगह पे जमा हो गई, सख्त हो गई। वो जगह बैतुल्लाह का मरकज़ है, जहाँ पे आज बैतुल्लाह बना हुआ है। और वहाँ से फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी ज़मीन को फैला दिया है। चुनांचे कहा जाता है कि बैतुल्लाह अव्वल आलम है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता, रूए ज़मीन पे सबसे पहला घर जो बनाया गया वो मक्का मुकर्रमा में है, वो बैतुल्लाह है। ये अव्वल आलम है। और बैतुल्लाह की दूसरी खसूसियत कि ये क़ल्ब आलम है, पूरे आलम का दिल है। और जैसे इंसानी जिस्म में दिल को अहमियत हासिल होती है, वही अहमियत इस पूरी कायनात में बैतुल्लाह को हासिल है। चुनांचे हम देखते हैं कि इस दिल की बका के साथ बाकी जिस्म की बका वाबस्ता है। दिल जिंदा है तो जिस्म जिंदा है। दिल अगर मर गया तो जिस्म मर जाता है। जिस्म को मरने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसी ही इस कायनात में जब तक बैतुल्लाह मौजूद रहेगा, ये निज़ाम चलता रहेगा। जिस दिन बैतुल्लाह को खत्म कर दिया गया, उस दिन पूरी कायनात का निज़ाम टेहोवाला हो जाएगा। अल्लाह ताला दरहम बरहम कर देगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास, बैतुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुर्मत वाला बनाया है, लोगों के लिए बका का जरिया बनाया है। लोगों की बका बैतुल्लाह के साथ वाबस्ता है। और यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामत की जो बड़ी बड़ी निशानियां बताई हैं, उनमें से एक निशानी ये भी है कि बैतुल्लाह को शहीद कर दिया जाएगा। जब बैतुल्लाह शहीद हो जाएगा तो निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, क्योंकि दिल ख़त्म हो गया, कायनात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ये बैतुल्लाह क़ल्ब आलम है। और कभी आप गौर करें कि इंसानी जिस्म में दिल का जो फंक्शन है, जो काम है, वही काम इस कायनात में बैतुल्लाह का है। चुनांचे हम देखते हैं कि पूरे जिस्म से खून पलट के दिल की तरफ आता है। दिल उस खून को ताज़ा करके, साफ करके, फ्रेश करके दोबारा पंप करता है, जिस्म के रग रग रेशे रेशे में पहुंचाता है। फिर वहां से खून गर्दश करके वापस पलट के आता है। दिल उस खून को ताज़ा करके, फ्रेश करके दोबारा पंप करता है, जिस्म के रग रग रेशे रेशे में पहुंचाता है। ऐसी ही पूरी दुनिया से लोग गुनाहों की मैल से मैले आकर बैतुल्लाह में आते हैं। बैतुल्लाह उन तमाम लोगों को पाक साफ करके दोबारा धकेलता है, दुनिया के कोने कोने में पहुंचा देता है। फिर लोग वहां से गुनाहों से आलूदा होकर पलट के आते हैं। बैतुल्लाह फिर उसको फ्रेश करके धकेल के दोबारा दुनिया के कोने कोने में पहुंचा देता है।
जो काम इंसानी जिस्म में दिल का है वही काम इस कायनात में बैतुल्लाह का है। लिहाजा बैतुल्लाह क़ल्ब आलम है, पूरे आलम का दिल है। और कभी आप दुनिया के नक्शे पे नजर डालें जो कागज पे बना होता है, आप नजर डालेंगे आपको जजीरा नुमाए अरब दुनिया के नक्शे में ऐसा लटकता हुआ नजर आएगा जैसा कि इंसानी जिस्म में ये दिल लटकता हुआ नजर आता है। ये क़ल्ब आलम है। और बैतुल्लाह की तीसरी खसूसियत ये कि ये वस्त आलम है, पूरे आलम का सेंटर है। अगर आप बैतुल्लाह की जगह पे खड़े हो जाएं और दाएं बाएं आगे पीछे को जमीन मापना शुरू कर दें तो आपको नजर आएगा कि बैतुल्लाह बिल्कुल वस्त में है, खत इस्तिवा के बिल्कुल नीचे है। चुनांचे आज तो बहुत ही ज्यादती के साथ और सीनाजूरी के साथ बरतानिया के एक मकाम को मियारी वक़्त का दर्जा दिया गया है कि उसका वक़्त मियारी वक़्त है। हालांकि हकीकत यह है फल्कियात और जोग्राफिया के माहिरीन कहते हैं कि जोग्राफिया की उसूलों के मुताबिक बैतुल्लाह और मक्का मुकर्रमा को यह हक हासिल है कि उसके वक़्त को पूरी दुनिया के लिए मियारी वक़्त करार दिया जाए, क्योंकि ये वस्त आलम है, पूरे आलम का मरकज़ी नुक्ता है। और बैतुल्लाह की अगली खसूसियत मसाबतल लिन्नास व इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास, हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए बार बार लौटने की जगह बनाई। लोग बार बार लौट के आते हैं, पलट के आते हैं। लोहे को अपनी तरफ खींचने वाली मिकनातीस तो आप लोगों ने देखी होगी, ऐसी ही लोगों के कुलूब को अपनी तरफ खींचने वाली मिकनातीस इस रूई जमीन पर अल्लाह का ये पाक घर है, लोगों के दिलों को अपनी तरफ खींचता है। चुनांचे हम देखते हैं क्या गरीब और क्या अमीर, क्या मर्द और क्या औरत, क्या जवान और क्या बूढ़े, क्या नेक और क्या बुरे, हर बंदे का दिल खिंचता है। पूरी जिंदगी में यह हसरत होती है कि कभी मुझे अल्लाह की इस खूबसूरत घर को देखने की सादत नसीब हो जाए। हर बंदे की ये चाहत होती है। नेकों की चाहत तो होती ही है, बुरे भी हर वक्त तड़पते रहते हैं। वो बदकार बदकिरदार लोग जिनको मस्जिद में साल में सिर्फ 2 मरतबा हाजिरी की तौफीक मिलती है, या ईद उल फितर के मौका पे या ईद उल अजहा के मौका पे, वो गुनाहगार और सियाकार लोग भी बैतुल्लाह को देखने के लिए तड़पते रहते हैं। ये बैतुल्लाह की कशिश है, बैतुल्लाह की मिकनातीसियत है, हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत महल्लात, खूबसूरत मनाजिर लोगों ने देखे होंगे। एक मरतबा देखते हैं, दोबारा वहां जाने को दिल नहीं करता। कहते वहां मैं पिछले साल गया था। अगर कोई बहुत खूबसूरत जगह होती है 2 मरतबा देख लेते हैं, तीसरी मरतबा देखने को दिल नहीं करता। बैतुल्लाह के अंदर ऐसी कशिश पाई जाती है, जो एक मरतबा देख लेता है दोबारा बंदा देखने के लिए ज्यादा बेताब होता है, दोबारा देख ले तो बेकरारी और बढ़ जाती है। आम लोग ये समझते हैं कि एक मरतबा हम अल्लाह का घर देख लेंगे तो हमें सुकून मिल जाएगा। ये हमारी खामख्याली है। बैतुल्लाह को देखने से सुकून नहीं मिलता, बल्कि बेकरारी बढ़ जाती है, बेताबी बढ़ जाती है। इसलिए जो लोग जितना ज्यादा उसका दीदार करते हैं, वो उसकी दीदार के लिए और ज्यादा प्यासे रहते हैं। सुकून नहीं मिलता बंदे को। बैतुल्लाह के अंदर कशिश है, हर बंदा देखने के लिए बेकरार और बेताब है। चुनांचे एक मरतबा नहीं 2 मरतबा, लोग 20 मरतबा बैतुल्लाह का दीदार करते हैं और फिर भी देखने के लिए और ज्यादा बेकरार होते हैं। चंद साल पहले की बात है कि सऊदी अरब के अखबारात में एक यमनी हाजी का इंटरव्यू शाया हो गया। यमन से एक हाजी साहब आए थे, बूढ़े, उम्र 100 साल से ज्यादा, हड्डियों का ढांचा, चलने पर कादिर नहीं, हज करने के लिए आए हुए थे। पुलिस वालों ने कहा कि बाबा जी, आपने अगर हज करना ही था तो जवानी में करते, आपकी ये उम्र हज करने की है, लोगों के कदमों के नीचे आ जाओगे, मर जाओगे। तो यमनी बाबा ने कहा कि जी हाँ बेटा, मैंने जवानी में भी हज किया है, लेकिन अब भी हज करने आया हूं। तो उन्होंने फिर कहा कि फिर आप हज करने अब क्यों आए हैं जब आप पहले हज कर चुके हैं? तो यमनी बाबा कहने लगा कि मैंने पहले कई हज किए हैं, लेकिन क्या करूं कि जब हज के अयाम आ जाते हैं तो मुझे घर में चैन नहीं आता। दिल के हाथों मजबूर होके बेकरारी के आलम में
घर से निकल पड़ता हूँ। घर के लोग भी मुझे समझाते हैं, अजीज़ व अकारिब भी समझाते हैं, लेकिन मेरे ऊपर किसी की नसीहत का असर नहीं होता। एक जुनून मुझ पे सवार होता है कि मैं किसी तरीके से अपने परवरदिगार के घर की दीदार के लिए पहुंच जाऊं। तो पूछने वालों ने पूछा कि आपने पहले कितने हज किए हैं? तो वो यमनी बाबा कहने लगा कि मैंने जब जिंदगी का पहला हज किया उस वक़्त मेरी उम्र 15 साल थी, और इस वक़्त मेरी उम्र 115 साल है, और ये मेरी जिंदगी का 100वां हज है। एक कम 100